Okay, so welcome everyone. Today we are going to discuss the remaining questions of 10M 8.2. So our today's target is to finish 10M 8.2. After that we will see for 10M 8.3. Okay, so 10M 8.2 everyone, we have seen till question number 6. I'll show you question 7 and 8 today. But before that, I want to ask you that in how many questions or in particular which question you are having doubt of homework exercise 8.2. होमवर्क एक्सरसाइज में लेवल 1 में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं. कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. मोहन, आर यू देयर? श्रीकर, आर यू देयर? टेल मी क्विकली. ओके, मोहन हैज जॉइंड. वेर इज श्रीकर? श्रीकर, आर यू देयर? हैव यू जॉइंड? ओके, ग्रेट. ओके, मोहन. ओके, सो यू आर हैविंग डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 352. ओके, नो इश्यू. चलो हम शुरू करते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सो फर्स्ट लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 7 8. फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 5 में सबको डाउट है वो हम देखेंगे. ओके, मतलब क्वेश्चन 1 और 4 में किसी को डाउट नहीं है, राइट? क्वेश्चन 1 और 4 में किसी को डाउट नहीं है, वो सबको आ गया. क्वेश्चन 1 एंड 4 सबको आ गया. अच्छा, 4 में भी डाउट है. ठीक है, मतलब क्वेश्चन 1 में किसी को डाउट नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन में डाउट है. ओके, अभी तक आपकी बातों से मुझे ये पता चल रहा है. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट नाउ. सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया ना. क्वेश्चन 7, लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 7. Okay, sorry, this side was not connected. If sine a minus b equal to 1/2, and cos a plus b equal to half, such that 0 degree is less than a plus b is less than or equal to 90 degree, and a greater than b, find values of a and b. क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? इस क्वेश्चन क्लियर? ओके, आज के क्लास के लिए आपको बस चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है. एवरीवन, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ, कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ. a प्लस बी आपका 0 से 90 के बीच में है, जो 90 हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता. इक्वल टू का मीनिंग वो 90 हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता. नाउ वी नीड टू फाइंड a एज वेल एज b. ओके, ग्रेट. सो I hope you guys remember that table. So if sine a minus b equal to half, who will tell me what is the value of means at which angle sine can become half? Sine की वैल्यू कौन से एंगल पे हाफ होती है? Okay, would you like to see that table? 30 डिग्री, राइट? अब ये टेबल सबको याद होना चाहिए, क्योंकि अब हर एक क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपको टेबल दिखाऊंगा बार बार, देन इट इज नॉट गुड. Okay, so sine a minus b is equal to half, which is equal to sine 30 degree. So from here, can I say that a minus b equal to 30 degree? Yes or no? Everyone, please give me some response. a minus b आपका 30 degree हो जाएगा. In the same way, cos a plus b equal to half. Cos half कब होता है? On 60 degree. So can I say a plus b equal to 60 degree? a plus b आपका 60 degree हो जाएगा. Are you getting my point? क्या अब आपका ये linear equation in 2 variable हो जाएगा? Isn't it your linear equation in 2 variable where you are having a plus b as well as a minus b? Okay.
जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है. Now you are having a plus b as well as a minus b. Okay. So method of elimination will be good here. Yes or no? So therefore, if I use here method of elimination, therefore a plus b equal to 60 degree and a minus b equal to 30 degree. This will give you plus b minus b will get cancelled out. A plus a 2a equal to 90 degree. If 2a equal to 90 degree, can I say a equal to 45 degree? Okay. आसान है. राइट. फ्री के मार्क्स लेने हैं. ये भी होमवर्क में दे दिया होता तो हो गया होता. Isn't it? चलो अब a इक्वल टू 45 कोई भी एक इक्वेशन में रख दो. आपको इसे इक्वेशन 1 और 2 बोलने की जरूरत भी नहीं है, बट चलो पहले से हमारी आदत है. सो कोई भी बोलो कौन से इक्वेशन में रखें. इक्वेशन 2 विल बी बेटर या 1, किसी में भी रखो, बोथ आर सेम. सो 45 प्लस b equal to 60 degree. So b will give you 60 minus 45, that is 15 degree or not. So a equal to 45, b equal to 15. Check your conditions. 45 and 15 both are less than 90, both are greater than 0. That means both are between 0 to 90. And okay, their sum 45 plus 15, their sum is between 0 to 90, right? So their sum is 60, which is between 0 to 90. Is it clear everyone? आसान है. Please give me some response. जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, क्वेश्चन 8. और आपको कोई स्कूल से नोटिस आई? स्कूल वाले कुछ बोल रहे हैं आपकी कब से स्टार्ट होगा? 10th वालों को बुलाने वाले हैं ऐसा कुछ? क्वेश्चन नंबर 8. ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर से, बट कैसे? कल पीटीएम है. अच्छा, उसी के रिगार्डिंग ऑनलाइन पीटीएम. ओके. अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी फ्रॉम 21st मोस्टली. 21st सितंबर से बुलाना रिस्की नहीं होगा? ओनली इफ पेरेंट्स एग्री. वही तो. क्या लगता है आपको, आपके पेरेंट्स भेजेंगे? डेफिनेटली कोई नहीं भेजेगा. cos theta minus sin theta divided by cos plus sin, okay, is equal to 1 minus root 3 by 1 plus root 3. वही तो, इसीलिए अभी रिस्की है देखो, क्योंकि आपके पेरेंट्स खुद जाएंगे कोरोना से लड़ने के लिए, बट आपको कभी नहीं भेजेंगे. आपके पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर उनकी जिंदगी में कुछ भी हो तो वो आप हो. और हम है कि हम पेरेंट्स की बात मानते ही नहीं, हम पेरेंट्स से झगड़ा करते हैं. सो आयरन. तो वही है मोरल ऑफ द स्टोरी. ऑलवेज लव योर पेरेंट्स. उनसे ज़्यादा प्यार आपको और कोई नहीं करेगा. चलो अब इधर आ जाते हैं. ओके. हाँ. एंड एक स्टूडेंट लिख रही है कि इसमें चैट बॉक्स में कि ऐसा पहली बार होगा कि पेरेंट्स हमें मना कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल मत जा. हम स्कूल जाने के लिए रेडी है कि हम स्कूल जा, सर हमें मम्मी पापा मुझे स्कूल जाना है, और पेरेंट्स हमें रोक रहे हैं कि मत जा. वही है. सही है. ग्रेट कॉमेडी. यस मोहन, डेफिनेटली हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स कैसे करें. फाइंड एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos माइनस साइन एंड cos प्लस साइन इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3. तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, वो मेथड तो है ही, बट मैंने आपको बोला है कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंड शायद आपके बोर्ड्स में ना भी अलाउ करें, इसलिए आपके टीचर से बोलने के लिए मैंने आपको पूछने के लिए बोला था. ओके. सो देयर आर चांसेस दैट कॉम्पोनेंट और डिविडेंड वो आपके ना अलाउ ना करें. सो उसके अलावा अगर कोई मेथड यूज करनी हो तो कर. क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं? ओके.
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गिव मी सम रिस्पॉन्स. यू कैन टाइप यस और नो. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं. ओके, so we can apply cross multiplication. See here. तो एक ऑप्शन तो है ही, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में तुरंत हो जाएगा. वो आप एमसीक्यू के लिए उसके लिए रख सकते हो, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो. तो अगर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में यूज कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर योर शॉर्टकट और वेरिफिकेशन ऑफ योर आंसर. कॉस माइनस साइन प्लस कॉस प्लस साइन, ये कैंसिल हो जाएगा. कॉस माइनस साइन माइनस कॉस माइनस साइन, ये कैंसिल हो जाएगा. कॉस प्लस कॉस 2 कॉस माइनस 2 साइन, कॉस बाई साइन माइनस. यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3. सो न्यूमिरेटर में 2, डिनोमिनेटर में माइनस 2 रूट 3, 1 बाई रूट 3. माइनस माइनस कैंसिल. कॉस बाई साइन आपको कॉट मिलेगा. कॉट इक्वल टू 1 बाई रूट 3. टेबल में आपको फाइंड करना है कॉट थीटा 1 बाई रूट 3 कब होगा. कॉट पाई बाई 3, कॉट 60 डिग्री. ओके, तो टेबल से आपको ये मिल जाएगा थीटा 60 डिग्री. ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से इतना हो जाएगा. बट डोंट यूज दिस मेथड इन बोर्ड्स. दिस इज ओनली फॉर योर शॉर्टकट. एमसीक्यूज में आप यूज कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मेथड दिखानी नहीं होती. और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आपका एनटीएससी ओलंपियाड वो सब हो रहा है तो. चलो, फॉर बोर्ड्स डिपेंड्स कि वो मार्क्स देंगे या नहीं. लाइक मोस्ट ऑफली शायद ना दें. चलो, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. सो cos theta minus sin theta into 1 plus root 3 is equal to 1 minus root 3 into cos plus sin. चलो, तो सिंप्लीफाई करते हैं. पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर रूट 3 के साथ. So if I multiply this with 1, can I get cos minus sin? If I multiply this with root 3, can I get root 3 cos plus root 3 sin? राइट, बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी आपको माइनस मिलेगा. इतना क्लियर हुआ पहले एवरीवन? नाउ ऑन आरएचएस, अगर मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, so 1 into cos plus sin, can I get cos plus sin only? Minus root 3 cos minus plus minus root 3 sin. ओके, दोनों साइड पे सिमिलर टर्म्स आप देख पा रहे हो. यहाँ भी प्लस कॉस है, यहाँ भी प्लस कॉस है, कैंसल. माइनस रूट 3 साइन माइनस रूट 3 साइन कैंसल. हाँ या ना? ओके, चलो. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास माइनस साइन बचा है, उसे राइट हैंड साइड भेज दो, तो वो साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस रूट 3 कॉस थीटा है, उसे राइट हैंड साइड पे माइनस रूट 3 कॉस थीटा है, उसे लेफ्ट हैंड साइड भेज दो. सो रूट 3 कॉस थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा. रूट 3 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 कॉस थीटा is equal to 2 times sin theta. 2 cancel. Sin by cos is equal to root 3, या cos by sin आप cot करके भी कर सकते हो, both are same things. So tan is equal to root 3. चलो, tan theta root 3 कब होता है आपका? tan 60 degree or not? So therefore theta equal to 60 degree. Everyone got this? Right, ये भी मेथड छोटी ही है. Okay, so both methods are one and all same only. You can use any method, but I'll recommend this method. Okay, क्योंकि क्यों खाली फोकट मार्क्स कटवाने हैं. Is it clear everyone? Please give me some response. Right, you can type in chat box. Is it clear? Easy, right? 64% पे काम कर रहे हैं. तो अगर पेरेंट्स एग्री भी करते हैं तो जो बाकी टाउनशिप वाले स्टूडेंट्स हैं, बाकी टाउनशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए बस भी चालू कर रही है स्कूल.
Okay, don't know, no issue. Now let us start your homework exercise. Homework exercise के जितने क्वेश्चंस हैं वो फिनिश करते हैं क्विकली और बाकी का आपका शुरू करते हैं. सो होमवर्क एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1 में किसी को डाउट नहीं है. मैंने लेवल 1 आपको दिया था, उसमें से आपने बोला 2 3 4. यू आर हैविंग डाउट इन 2 3 4 5. क्वेश्चन 1 में आपको सारी वैल्यूज फाइंड करनी थी, जस्ट आपको सारी करना है. ओके. हाँ यस, अवंती पूरा डिपेंड करती है स्कूल पे. तो जैसे स्कूल ओपन होगी फिर वो स्कूल की क्या गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से अवंती भी ओपन होगी. ओके. क्योंकि अगर पेरेंट्स जब तक स्कूल भेजने के लिए रेडी नहीं है फिर अवंती में कैसे भेजेंगे, तो वो है. क्योंकि हम अवंती यहाँ पे आपके स्कूल के प्रीमाइसेस ही यूज करती है. ओके. सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2. If tan A equal to cot A, find the value of cos 2A where 0 less than A less than 90. If tan A equal to cot A, find the value of cos 2A if 0 less than A less than 90. Okay, yes. So yes, श्रेया हर बार की तरह परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर नहीं, बट ऐसा अप्रोच यूज मत करो. सो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, एग्री, वो आप बोल सकते हैं, बट ये अप्रोच मत यूज करो. ठीक है. चलो tan A इक्वल टू कॉट ए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ से आप कुछ निकाल सकते हैं? क्या यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं? a की ऐसी वैल्यू जिसके लिए tan और cot दोनों की वैल्यू आपकी सेम हो, वेयर a इज बिटवीन 0 to 90. यस, a इज 45 डिग्री, राइट. या जो श्रेया ने अप्लाई किया, श्रेया एस ए, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोट परपेंडिकुलर बाय बेस एंड बेस बाय परपेंडिकुलर लेके वहां से आप उन दोनों को सेम कर सकते हैं. ठीक है. या कॉट ए को आप 1/10 ए लिख सकते हैं. समझो, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है. आपको यहाँ से क्या करना है, सिंस हियर tan ए इज इक्वल टू cot ए, ओके, tan और cot यहाँ पे आपके सेम है, क्या आप cot को लिख सकते हैं 1/10? टेल मी, कैन यू राइट cot as 1/10 और tan as 1/cot? ओके, कोई भी एक में कन्वर्ट कर दो, या आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हो, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा. सो tan a as it is, cot a will be 1/10 a or not? Okay, so therefore tan a into tan a, that is tan square a equal to 1. So can I say tan a is square उधर जाएगा तो exactly plus or minus square root होता है, but since between 0 to 90 tan is only positive, so it is square root 1. हाँ yes, मौर्यवर्धन हम वो भी ट्राई कर सकते हैं. tan a equal to cot 90 minus b. Okay, but 90 minus b नहीं कर सकते, उसे 90 minus a लिखेंगे, बट वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री वाला डिलीटेड पोर्शन है, तो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा उसमें क्या होता है. tan a equal to 1. इज इट क्लियर एवरीवन? चलो अब tan a 1 कब होगा? डेफिनेटली व्हेन tan 45 डिग्री वी आर हैविंग. सो a is equal to 45 डिग्री और नॉट? रोशनी आप क्या बोल रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा. वी कैन राइट इट डायरेक्टली फ्रॉम टेबल एज वी हैव रिमेम्बर्ड टेबल. अगर आपने टेबल याद रखा है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं. आई एम नॉट गेटिंग रोशनी एक्चुअली व्हाट यू आर टेलिंग. शैल आई अनम्यूट यू? ओके. यस रोशनी, टेल मी. सर वो उस टेबल में साइन, वो टेबल से हम लोग ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या सर? tan a is equal to cot a is equal to 45. यहाँ से डेफिनेटली डेफिनेटली यहीं से ना डायरेक्टली आप बोल रहे हो कि सर दोनों हाँ सेम हाँ 45, हाँ लिख सकते हैं, बट वही शायद मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये वही आपके एनसीईआरटी की मेथड में फॉलो कर रहा हूँ, बोर्ड्स की मेथड.
सो वो डिपेंड करेगा, एग्जैक्टली लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, बट थोड़ा बहुत दिखा दो तो चलेगा। इट इज नॉट अ वेरी बिग कैलकुलेशन और इतना टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है, तो थोड़ा कैलकुलेशन दिखा दो तो सही है। आपको याद हो प्रीवियस क्वेश्चन एक साइन ए इक्वल टू कॉस ए दिया था, हाँ या ना? ओके, तो वो भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 45 डिग्री, बट उस पर भी हमने साइन बाई कॉस 10 करके लिखा था। ओके, ताकि ये कुछ कन्वेंशनल मेथड हैं, कन्वेंशनल चीजें हैं जो आपको निभानी पड़ती हैं, जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, दैट्स इट, इसीलिए और कुछ नहीं है। क्योंकि जब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चेक करने के लिए देते हैं तो कुछ एग्जामिनर्स मार्क्स दे देंगे, कुछ नहीं देंगे, और शायद मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं देंगे, तो बेटर है कि हम थोड़ा लिख दें। ओके, अदरवाइज कुछ गलत नहीं है उसमें। नाउ cos 2a, it is equal to cos times cos, not cos times cos of, हाँ एट द एंड, हाँ एंड सब यूज तो टेबल ही करना है आपको। ओके, यहाँ पे भी बस ये दिखाने के लिए दिखा रहे हो और कुछ नहीं। ओके, कुछ चीजें बस शो के लिए होती है, तो वो है, अब ये समझ लो। सो cos 2a इक्वल टू cos 90 डिग्री, ओके, 2 times 45 which is equal to cos 90 degree. Now cos 90 डिग्री कब होता है आपका? सॉरी, cos 90 कब होता है, नहीं, cos 90 क्या होता है आपका? 0, if you remember your table, right? So cos 2a equal to 0 degree. That's it, easy question. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सबको क्लियर हो गया? शैल वी सी क्वेश्चन नंबर 3 नाउ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ओके, easy. Question number 3. Verify that as the value of sin A increases, the value of cos A decreases from 0 to 90. At what angle A the value of sin and cos are equal? अब ये तो आपको पूरा टेबल से ही ऑब्जर्व करके लिखना है, ये तो आसान ही है, और इवन मैंने नोट में भी दिया था। शायद आपको इसमें डाउट होगा कि लिखना कैसे है। ओके, तो बस आपको साइन और कॉस वाला टेबल के 2 रोज लिख देने हैं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू देयर कॉलम। सो वी नो दैट साइन ए और कॉस से आपको बोला गया, तो यहाँ थीटा हम ए लेंगे, साइन ए कॉस ए। 0 to 90 के लिए हमारे पास नॉन वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। Now tell me what is sin 0, students? 0, sin 30 half, sin 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 1, cos 0 1, root 3 by 2 इंटरचेंज आपको पता ही है, 1 upon root 2, हाफ एंड 0। सो बस आपको यहाँ पे ये लिख देना है, फ्रॉम अबव टेबल it is clear that value of sin A increases and value of cos A decreases okay as value of, or you can write first like that, it is clear that from 0 degree to 90 degree as value of A increases, और नहीं तो आप ये लिख सकते हो as value of A increases from 0 degree to 90 degree। नहीं, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन फोर्थ में आपको वो दिया है 2 sin 2 cos 3 थीटा। दिस इज ओनली योर क्वेश्चन नंबर 3। now value of sin A decreases from, not decreases, my mistake, increases from 0 to 1, and value of cos A decreases
from 1 to 0. So finally, therefore, we can say that as value of sin A increases, as value of sin A increases, value of cos A decreases. Is it clear? Sin A increase hota hai, cos A decrease hota hai. Now at what angle A are the values of sin and cos equal? Tell me. Okay. आप कौन सा बोल रहे हो श्रेया? शायद आपने क्वेश्चन 4 का आंसर लिख दिया. So yes, from table at A equal to 45 degree, sin A equal to cos A equal to 1 upon root 2. Is it clear everyone? Right. क्वेश्चन में पता चला, आसान है. Okay, जाए नेक्स्ट. वन अपॉन रूट टू तो वो नहीं पूछ रहे, जस्ट वो पूछ रहे कौन से ए पे सेम होगा. दैट्स इट. सर आंसर शुड बी 45 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. आपको नेक्स्ट आउट है क्वेश्चन 4 एंड 5. 2 cos 3 theta equal to root 3. Find value of theta. Now एक मिनट मुझे याद है. यस ज़ईम आपका कॉल आया था ना. यू आर टेलिंग दैट यू आर नॉट हैविंग मॉड्यूल, राइट? ज़ईम आप कौन से टाउनशिप में हो? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ. ज़ईम, आर यू देयर? ज़ईम. हाँ सर. हाँ, आप कहाँ पे हो? कौन से टाउनशिप में हो? सर वीवी नगर. वीवी नगर. जब मैं पूरा ग्रुप बना रहा था वीवी नगर का, आप वो वीवी नगर के ग्रुप में आए? नहीं सर. तो कैसे मिलेगा बोलो? पूरा ग्रुप का नोटिफिकेशन आया था वो हमारे ग्रुप में कि हर एक टाउनशिप के लिए मैं अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. तो वीवी नगर के ग्रुप में आपने ज्वाइन क्यों नहीं हुए? सर मेरा कुछ इश्यू चल रहा था सर, इसीलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया सर. ऑफलाइन था थोड़े दिनों से. ठीक है, नो इश्यू. तो अभी मैं वीवी नगर में नहीं पहुंचा सकता ना. एग्जैक्टली क्या हुआ वहां पे, हमने पूरा ग्रुप बनाया. वीवी नगर से एक पेरेंट आए जो क्लास 9th वैष्णवी के पेरेंट्स हैं, वो सारे मॉड्यूल लेके गए. ओके. तो ओके सर. तो सर मैं बाद में ले लूंगा सर आपसे. हाँ, तो कभी भी आपका किसी का भी विद्यानगर के आसपास आना हो रहा है तो पहले कांटेक्ट करना. कोई फ्री मिक्स ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा जहाँ पे मैं भी फ्री हूँ, वो भी फ्री हो, तो बीच में सेट हो सकता है. ओके. ओके सर. ठीक है. और सुक्तिका का मैसेज आया था. यस, 2 स्टूडेंट्स ने मॉड्यूल नहीं दिए हैं जो मैंने सुक्तिका को दिए थे. आई थिंक शंकरगुड़ा टाउनशिप, राइट? सुक्तिका, राइट? सुक्तिका शंकरगुड़ा टाउनशिप में है. शुक्तिका, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके. सबसे पहले आई थिंक शुक्तिका और उनके पेरेंट्स नहीं लिए थे. तो 2 स्टूडेंट्स संदेश और सुजोई, जहां तक मुझे नाम याद है. संदेश, सुजोई, आर यू देयर? ओके, है ना? सुक्तिका यही दोनों नाम थे ना, सुजोई और संदेश? संदेश तो आई थिंक तोरना गल्लू का है ना. स्टूडेंट्स, आर यू देयर? स्टूडेंट्स, संदेश, सुजोई, कैन यू हियर मी? ओके. संदेश, प्लीज कलेक्ट योर मॉड्यूल्स फ्रॉम सुक्तिका. आप वो ग्रुप में हो ना? ओके. सुजोई नहीं है. हाँ, तो सुजोई नहीं है अभी भी ग्रुप में. तो अच्छा, बोथ आर फ्रॉम शंकरगुड़ा ओनली. ओके, ठीक है. संदेश, आप वहाँ से कलेक्ट कर लो. और सुजोई प्लीज. सुजोई को कौन फ्रेंड है, कौन सुजोई को कॉल करेगा? सुजोई इज नॉट हियर टुडे. हु विल कॉल सुजोई? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? टेल मी. नहीं तो रखे रहो सुक्ति का अपने पास रखो. हमको पढ़ी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. ओके. संदेश नेटिव प्लेस में सुक्ति का, तो वो जब शंकरगुड़ा टाउनशिप आएंगे तब आपसे ले लेंगे. अभी आपके पास रखो, ठीक है? सो cos 3 थीटा इक्वल टू √3/2. ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, अब cos 3 थीटा आपका √3/2 है. थीटा कैसे फाइंड करेंगे?
फ्रॉम टेबल ओनली क्विकली, कौन से डिग्री पे होगा? cos 3 theta equal to root 3 by 2. Then what is the value of that angle? Cos 30 degree or not? Isn't it? Just observe table. So therefore 3 theta equal to 30 degree. What is the value of theta now? Theta equal to 30 by 3. So therefore theta is equal to 10 degree. Okay. Now your last question of homework, question number 5, वो डिस्कस कर देते हैं, फिर लेवल 2 शुरू करेंगे. Determine the value of x such that 2 cos x square 30 plus x sin square 60 minus 3 by 4 tan square 30 equal to 10. Okay, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. Can you please explain fourth question? Why not? क्यों नहीं? See here. So question number 4, everyone. 2 cos 3 theta equal to root 3. So here we are having 2 in multiplication. वो 2 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा root 3 by 2. Cos 3 theta equal to root 3 by 2 or not? अब cos के टेबल में देखो root 3 by 2 कब आता है? Cos 0, 30, 45, 60 कब आता है? 30 डिग्री पे या नहीं? ये root 3 by 2 आपका कब आता है? 30 डिग्री? Yes or no? Please give me some response. Harish, is it clear? Okay. So, तो क्या यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3 theta equal to 30 because cos 3 theta equal to cos 30, then 3 theta equal to 30. So theta equal to 10. Okay. Now question number 5, आपको एक equation दिया गया है and you need to find value of x. Okay. So can we put all these values? So therefore 2 as it is. Now what is the value of cosec 30, students? Sin 30 is 1/2. So cosec 30 is 2 or not? Can you see this table and tell me? देखो मैं चाहूँ तो फटाफट वैल्यू लिख के कर सकता हूँ, राइट? बट क्यों स्लो जा रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व टेबल एंड गिव मी आंसर, ताकि आपको आदत होगी टेबल में कैसे आइडेंटिफाई करना है. अभी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में जल्दी जल्दी होगा. बोर्ड्स के पेपर में एक ही प्रॉब्लम सबसे वो होती है, आपको पूरा आता है बट आप खत्म नहीं कर पाओगे, लेंथी होता है. ओके. और आई थिंक आपको एक्सपीरियंस है, आपको अभी का एक्सपीरियंस है ना. लास्ट टाइम आपके स्कूल के सब्जेक्टिव पेपर्स बहुत लेंथी थे, आया ना? आप ही के क्लास के लेंथी थे, और जो आपका फीडबैक लेके मैं बाकी सारे क्लास में बता रहा था कि 9th का लेंथी निकला था, इजंट इट? हाँ. तो इसीलिए अभी से पूरी प्रैक्टिस करो, टेबल में देख के मुझे बताओ क्विकली, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट. चलो. सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60? क्विकली. वेरी गुड. root 3 by 2. What is the value of tan 30? 1 upon root 3. Very good. चलो पूरा सिंप्लीफाई करते हैं. 2 into 2 square 4, 4 into 2 will give you 8, plus x root 3 square 3 divided by 2 square 4 minus 3 by 4 1 square 1 root 3 square 3 equal to 10. 3 will get cancelled out. 8 उधर चला जाएगा. So 3x by 4 minus 1 by 4 is equal to 10 minus 8. 10 minus 8 आपका हो जाएगा 2. Minus 1 by 4 will go to that side. It will become plus 1 by 4. 2 plus 1 by 4, 4 to the 8 plus 1, 9 by 4. So therefore 3x by 4 equal to 9 by 4. 4 will get cancelled out. X is equal to 9 by 3 implies x is equal to 3. Easy. Okay. We will get x is equal to 3. Okay. तो यहाँ आपके इन क्लास एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो रहे हैं. आसान क्वेश्चंस ही थे, जस्ट आपको वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करना है. ये पूरे एक्सरसाइज में बस यही है. ओके. जाए नेक्स्ट ऑन लेवल 2. एवरीवन रेडी फॉर लेवल 2? हाँ. यस यस श्रेया, डेफिनेटली.
So Shreya ऐसे इज आस्किंग दैट सर 9th में हम पहले सेक्शन डी लिखते थे, क्या बोर्ड्स में ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली। ओके, टाइम बचाने के लिए यही आपको करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन एक एक मार्क का है, उसमें स्टूडेंट्स बहुत टाइम ले लेते हैं। सेक्शन डी से शुरू करो, तो सेक्शन डी 4-4 मार्क्स का है, तो आप ज्यादा मार्क्स पे टाइम दे पाओगे, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, फिर सेक्शन ए पे आओ। ओके, यस। बट ऐसा मत करो कि रेक्टेंगुलर क्वेश्चन, मोहन मीन्स कौन से रेक्टेंगुलर क्वेश्चन? रेक्टेंगुलर क्वेश्चन हाउ टू डू? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सेक्शन डी आप पहले लिखो, फिर सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए, इस तरीके से आप लिख के आगे बढ़ो, आई एग्री। बट सेक्शन डी के कुछ पॉइंट आगे, मतलब मान लो सेक्शन डी का क्वेश्चन है, वो सेक्शन बी में मत लिखो। सेक्शन डी का कोई क्वेश्चन छूट गया, वो सेक्शन बी या सेक्शन ए के बीच में मत लिखो, वो आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ओके एग्जामिनर को चेक करने में। यस मोहन, आई एम अनम्यूटिंग यू, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लाइट का इश्यू। ओके, होमवर्क थर्ड क्वेश्चन लेवल 1, हाँ वो तो मैंने करा दिया ना मोहन, ये रहा लेवल 1 थर्ड क्वेश्चन। वो बस टेबल के थ्रू आपको लिखना है, टेबल आपको लिख देना है, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन आपको वैसे लिखना है। ओके, फ्रॉम टेबल वी आर ऑब्जर्विंग दिस। इज इट क्लियर? आई थिंक मैं मूवमेंट कर रहा हूँ इसलिए वो मूवमेंट हो रहा है। ओके, बट इधर लाइट और बढ़ रही है। ओके, इन माइंड वन रेक्टेंगुलर क्वेश्चन इज देयर। अच्छा, आप मुझे उसका फोटो निकाल के भेज दो, क्योंकि यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर क्वेश्चन नहीं है। ओके, नए मॉड्यूल में कोई रेक्टेंगुलर क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आई एम हैविंग ओल्ड मॉड्यूल। ओके, सो लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सारे क्वेश्चन तो हमें खत्म करने हैं, बट अभी जस्ट अ मिनट। Okay, so see here students, now level 2 question number 6, 7, 8, 9, 10. So let us see first question number 6. In triangle ABC, right angle at B, आपके पास triangle ABC है, which is right angle at B, angle A equal to angle C. Find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Second, find the value of sin A sin B plus cos C cos B. राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, जिसमें आपका एंगल बी 90 डिग्री है। कैन आई से एंगल ए एंड सी बोथ आर सेम? ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही दिया गया है। चलो टेल मी, अगर इतनी चीजें क्लियर है तो यहाँ से आप क्या क्या चीजें बोल सकते हो? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी हियर? एंगल ए और सी आपका क्या हो जाएगा अगर दोनों सेम है? 45 डिग्री और नॉट, राइट? सो वो हम थोड़ा दिखा देंगे कैसे। So here angle A plus angle B plus angle C equal to 180 because angle sum property. So therefore angle A is 45, angle B 90, angle C is 40. 45 तो दिखाना है. So suppose this is x, right? Left. So x plus 90 plus x is equal to 180. So x plus x, 2x is equal to 90 or not? 2x is equal to 180 minus 90, which is equal to 90. So what is the value of x? X is 45 or not? 90 by 2 equal to 45. Everyone? Hi or na? So angle E equal to angle C equal to 45. Okay. Now, what is the value of sin A?
Sin 45, 1 upon root 2. What is the value of cos A? Cos 45, 1 upon root 2. What is the value of sin C? सारी वैल्यू आपकी 1 upon root 2 ही होंगी, हाँ या ना? A और C के रिलेटेड sin और cos. Okay, cos C equal to cos 45 equal to 1 upon root 2. So can I put all these values here? First expression sin A 1 upon root 2 because वो already मैंने उधर दिखा दिया. 1 upon root 2, 1 upon root 2 into 1 upon root 2. 1 upon root 2 into 1 upon root 2 will give you half. 1 upon root 2 into 1 upon root 2 will give you half. Half plus half will give you 1 or not? Half plus half आपका 1 हो जाएगा. Please give me some response. Now sin A, which is sin 45 1 upon root 2. Sin B. Now sin B आपका क्या हो जाएगा? B is 90 degree or not? Sin 91. Cos C, cos 45 1 upon root 2. Cos B, which is cos 90 degree, which is equal to 0. So it is equal to 1 upon root 2. Okay. आसान है. Please give me some response everyone. Easy? हाँ या ना? देखो. Okay. Great. Now question number 7. Find the value of the x in each of the following. 3 आपको दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. एक मैं आपको कराता हूँ, बाकी आप घर से ट्राई कर सकते हैं, हाँ या ना? ओके. फर्स्ट सेकंड थर्ड एक मैं आपको कराता हूँ, बाकी आप घर से ट्राई करो. Just a minute. बैकग्राउंड को रिमूव ही कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान कर रहे हैं. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ. tan 3x is equal to sin 45 cos 45 plus sin 30. Chalo, let us put all these values. So tan 3x as it is. What is the value of sin 45? 1 upon root 2. Cos 45 1 upon root 2. Sin 30 is half or not? Tell me. ये clear है पहले? Okay, sin 30 आपका half होगा. सारी values. Please give me some response, everyone. Yes or no? Okay. Next. So 1 upon root 2 into 1 upon root 2 will give you half. Half plus half will give you 1. चलो, tan 3x is equal to 1. tan के टेबल में 1 कब आता है? At which angle we will get tan equal to 1? tan 45 equal to 1. क्या tan 45 डिग्री आपका 1 होगा? So can I say 3x is equal to 45 degree? Can I say x is equal to 15 degree? आसान है. क्या इस तरीके से आप सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में? Okay. Please give me some response. Yes or no?
ओके नेक्स्ट। उसके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए बी फाइंड करना है। दिस टाइम यू आर हैविंग साइन ए प्लस 2b एंड कॉस ए प्लस 4b। तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको इन क्लास एक्सरसाइज का दिखाया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ओके, हियर दे आर गिविंग यू साइन a plus 2b root 3/2 cos a plus 4b 0। और आपको कंडीशन क्या दी गई इस बार, a ग्रेटर देन b। तो cos आपका 0 कब होता है, cos 90 पे। sin root 3/2 कब होता है, sin 60। तो a plus 2b 60 मिलेगा, a plus 4b 90 डिग्री मिलेगा। फिर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। टेल मी यस और नो, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। इजी, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 9। Okay. Okay. So for question number 9, in an acute angle triangle ABC, if sin 2a plus b minus c equal to 1, एक acute triangle ABC है, आपको ये दिया गया sin 2 times a plus b minus c equal to 1, tan b plus c minus a equal to root 3, then find a plus a, b and c. Okay. चलो मुझे ये बताओ यहाँ पे sin 1 कब होता है, sin 90 डिग्री इज 1। tan रूट 3 कब होता है, tan 60 डिग्री इज रूट 3। तो यहाँ आपको एक इक्वेशन ये मिलेगा, दूसरा इक्वेशन ये मिलेगा, और तीसरा इक्वेशन है आपके पास, सिंस इट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 इक्वेशन है आपके पास। क्या आप ट्राई करोगे ये क्वेश्चन को? ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। 3 क्वेश्चन है, 3 अननोन है। आप इसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एंड क्वेश्चन 10, इफ x इक्वल टू 30 यू जस्ट हैव टू वेरीफाई LHS एंड RHS। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें बस आपको वैल्यू रखनी है सारी। ओके, तो वो क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडेज क्लास। आज का आपका होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन 8, 9, 10। सो आज आपको 8.2 की होमवर्क एक्सरसाइज फिनिश करनी है, और एडवांस क्वेश्चंस उनके लिए जो RD शर्मा कर रहे हैं, तो आप एडवांस क्वेश्चंस करें, सबके लिए नहीं है। ओके, तो जो भी आपको डाउट हो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपका ये चैप्टर 8.4 हम शुरू करेंगे। सर कैन वी डू इट बाय ट्रिपल सब्सटीट्यूशन? हरीश, कौन सा ट्रिपल सब्सटीट्यूशन? मतलब एक ही वेरिएबल की वैल्यू 2 वेरिएबल में आप पहले रख सकते हो। हरीश आप बस ट्राई करो, क्योंकि अभी मैं जो भी बोलूंगा वो नहीं पता चलेगा। एक बार ट्राई करो, डेफिनेटली मैं कराऊंगा। Okay, so this is it for today's class. Thank you everyone. We will catch the thief. अभी एंड मीटिंग एंड करके तुरंत कैच कर दूंगा। काहूट अभी हम नहीं खेल सकते बिकॉज इट इज ऑलरेडी 6:20। 6:30 से आपका क्लास है, डोंट वरी। लास्ट वीक का काहूट बचा हुआ है, आई नो। तो ये वीक में मैं आपको डबल काहूट खिलाऊंगा। ओके, सो वी विल ट्राई टू प्ले काहूट वेडनेसडे, फ्राइडे आपको थोड़ा बड़ा काहूट खेलेंगे। ओके, सो एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क मी यू कैन आस्क, राइट? कोई भी और कोई डाउट? Shall I end the meeting? Okay. So thank you everyone. See you on Wednesday. Okay.